آقا، حورم سلطان تشریف لائی ہیں. آنے دو. حورم، خوش آمدید. میں اپنی دختر سے باتیں کر رہا تھا. اگر کوئی خصوصی گفتگو ہے تو میں بعد میں آ جاؤں گی. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. آقا اجازت دیجیے، ہمارا میری منتظر ہوگی. اجازت ہے تمہیں دختر. آؤ بیٹھو میرے پاس. حورم، کیسے ہو تم؟ میں ٹھیک نہیں ہوں سلیمان. یعنی طفل والے مسئلے کی وجہ سے. حورم، اس موضوع پر میں اپنے جذبات ہرگز نہیں چھپاؤں گی. میرا دل جل گیا ہے کیونکہ آپ کو دوسری خاتون کے حوالے کر دیا. لیکن یہ نہیں سوچا تھا اس وقت کہ طفل بھی ہو سکتا ہے. اس حقیقت کو قبول کرنا میرے لیے مشکل ہے بہت. میں ایسی ہی ہوں. ہر کسی کی ایک الگ فطرت ہوتی ہے. میری پیاری حورم، مجھے سایہ زلف یار سے کون جدا کرے گا. میں نے تو زلف یار کی خاطر دل کو تار تار اور گریبان کو چاک کر لیا ہے. سورج کی سب سے حسین کرن کی خاطر ہمیشہ عشق بہاتا ہوں اور آہیں بھرتا ہوں. بادل بھی میری حالت پر آپ دیدہ ہیں، میرا حال جاننا چاہتے ہیں. محب بھی اپنا حال کیا بتائے، کیونکہ ہجر یار نے مجھے ان کی سایہ زلف سے دور جو کر دیا، میرے دل کو نچور کر دیا. کرو آقا، کسی بھی وقت مجھے اپنے پاس بلا سکتے ہیں. میں پرکشش بننا چاہتی ہوں. اور تم باورچی خانے خبر بھیجو، میرے لیے کھیر بنائے، میرا دل چاہ رہا ہے کھانے کا. کنیزوں سے کہا تھا اس سے بات نہ کریں، لیکن فاطمہ سلطان نے حکم دیا تھا. خاتون کو اسی لیے حکم دے رہی ہے. یہ ہو لینے دو اسے خوش، کیونکہ یہ خوشی عارضی ہے. فاطمہ سلطان کی طرح اس کا انجام بھی قریب ہے. فارحہ خاتون، کیسی ہو تم خاتون؟ تمہیں اس حالت میں کھانے پینے میں احتیاط برتنی چاہیے. فارحہ کا الفا، بات کرنے دو آغا. دو باتیں بھی نہیں کی میں نے. عفیفہ خاتون نے ہدایات دی ہیں. حرم سلطان نے بھیجا ہے مجھے یہاں. وہ خاتون سے ملنا چاہتی ہیں. تم آؤ میرے ساتھ. ناممکن، نہیں آ سکتی، پابندی ہے. کون جرأت کر سکتا ہے حرم سلطان سے ملنے پر پابندی لگانے کی؟ گھبراؤ نہیں. تمہاری جان لینا چاہتی تو اس طرح دن میں نہیں بلاتی. چلو آؤ. شہزادی، حرم سلطان نے بھیجا ہے مجھے آپ کے پاس. شام کو انہوں نے اپنے کمرے میں ایک محفل کا انعقاد کیا ہے. آپ تشریف لائیں گی تو انہیں بے حد مسرت ہوگی. کوئی موقع نہیں، کوئی تہوار نہیں، اس جشن کی کیا ضرورت تھی آخر؟ میرا خیال ہے کہ آپ کی اپنے خاوند کے ساتھ روانگی کے سبب جشن منانا چاہ رہی ہیں. تشریف لائیں گی کیا شہزادی؟ کیا کہوں میں ان سے؟ ضرور آؤں گی میں. آپ جا سکتی ہیں عفیفہ خاتون. دیکھ رہی ہو چالاکیاں حرم کی. اپنے دانش میں میرا مذاق اڑا رہی ہے.
वो जितना चाहे मजाक उड़ा लें शहजादी, उन्हें आपकी जानिब से बाहर सूरज जवाब दिया जाएगा। अपनी सेहत की तरफ से लापरवाही तो नहीं कर रही हो ना? क्या तबीबा मायना कर रही है? जी हाँ, कर रही है मलिका। यह अच्छी बात है। तुम एहतियात बरतो। घूमने फिरने में भी एहतियात करना सरा। कहीं ऐसा ना हो कि किसी सबब तिफिल को नुकसान पहुंच जाए, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी इसी तिफिल की वजह से है। तुम्हारे जहन में कैसी जहरालूद बातें भर रहे हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है खातून। मैं इब्तिदा में कुछ भरम जरूर थी, क्योंकि तुमने ये मुझसे छुप के किया। माजरत चाहती हूँ। जाहिर है तुम भी कनीज हो एक, और हर कनीज की तरह तुम्हारे भी कुछ ख्वाब हैं। उम्मीद से होना, शहजादे से नवाजना, मलिका बनना। अगर अकल से काम लोगी तो इन ख्वाबों की तकमील में मुश्किल नहीं होगी। मलिका, मुझसे क्या चाहती हैं आप? फातिमा सुल्तान से दूर रहो, काफी है। अपने आप को मेरे खिलाफ इस्तेमाल होने की इजाजत ना दो। वो तो अनकरीब चली जाएंगी यहाँ से। मैं कई बरसों से इस हरम में हूं। यहां कोई चीज मुस्तकिल नहीं होती। तुम आखिरी लम्हे तक यहां किसी भी चीज का यकीन नहीं कर सकते। तुम जा सकती हो खातून। काम हो गया क्या? जी हाँ, काम हो गया मलिका। दवा में जहर मिला दिया है। हर शख्स सोने से पहले वो दवा जरूर लेती है। पिछले दिनों में अहमद के मज़ार पर गई थी, उसकी कब्र को चूमा, राहत नसीब हुई, लेकिन दिल उदास हो गया। महमद की पैदाइश के दिन मैंने ख्वाब देखा था। वो मासूमियत से तख्त पर सो रहा था। नूर की तरह मासूम चेहरा था। मैं समझा वही तख्त नशीन होगा, लेकिन मेरे रब ने शायद मेरे नसीब में मेरी औलाद का दुख लिखा था। अब एक और औलाद होगी मेरी, कई बरसों के बाद एक और औलाद। हर दिन अपने रब से उसकी सेहतमंद पैदा होने की दुआएं करता हूं रम। औलाद के दुख में जिस अंधेरी खाई में गिरा था, उससे शायद मुझे निकालने के लिए अजीम रब ने मेरी जानिब हाथ बढ़ाया है। इजाजत दें। हुरम, मेरी इन बातों से तुम्हें दुख पहुंचा है क्या? हरगिज नहीं, ऐसा क्यों होगा? जहांगीर से वादा किया था, मेरा इंतजार कर रहा होगा। मैं दोबारा आ जाऊंगी। काफी देर से नहीं देखा मलिका, मालूमात नहीं कहाँ क्या है। जिस वक्त उसकी जरूरत होती है वो कभी नहीं मिलता। मलिका, फारिहा, आओ यहाँ। फौरन कनीज के कमरे में जाओ, खातून को वो दवा पीने से रोको। कहीं वो पीकर सोना चुकी हो। जो कह रही हूँ वो करो फौरन।
नाज़नीन खातून, क्या हुआ? छोड़ो इसे, हरगिज ना पीना इस दवा को। फारिया काल्फा, ओहो, तुम अब मेरी जान छोड़ दो। तबीबा ने भेजा है मुझे, उसने कहा है कि दवा को बदलना होगा। तुमने ये पी तो नहीं? पी तो नहीं, लेकिन शाम को तबीबा आई थी, उसने कहा था कि लाजमन पीनी। मुझे ये कैसे मालूम होगा खातून? जाओ खुद जाकर पूछ लो। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं। तुम यहाँ इसके पास क्या करने आई हो? दरअसल खातून की दवा बदलने के लिए आई थी मैं यहाँ। ये पुरानी हो गई है, माज़अल्लाह कहीं बच्चे को कोई नुकसान ना पहुँच जाए। अगर तुम दोबारा इस कमरे में नजर आई तो ये पुरानी दवा तुम्हें पिला दूंगी, समझ गई? मलिका, अपने बाल इसमें डाल दीजिए। ये सब क्या है खातून? कैसी है ये अलामतें? ये मैं नहीं, आपको मुझे बताना होगा मलिका। क्या नजर आ रहा है आपको? इतना काफी है, उठाओ ये सब कुछ। घबराइए नहीं मलिका, वरना आपका ये डर एक दिन आपके अंदर समा जाएगा। एक शहजादा पैदा होगा, वो शहजादा तख्त और तमाम तुर्क सल्तनत का मालिक बन जाएगा मलिका। तुर्क खानदान आलिया उसी शहजादे से जारी रहेगा। खामोश हो जाओ, चली जाओ यहाँ से और दोबारा नजर ना आना। दुआ मांग रही हो? शहजादी बैठिए। माजरत, मुझे एहसास नहीं हुआ आपकी आमद का। मुझे तुम्हारी सेहत की फिक्र थी। तुम आफियत से हो ना? आपके ज़ेरे साया आफियत से हूँ शहजादी। दुआ कर रही हूँ कि ये मरहला जल्द अज जल्द तय हो जाए। मैंने सुना है कि हुरम फाल देखने वालियों और साहिराओं से मदद की उम्मीद कर रही है। बहुत खूब, उससे बड़ी साहिरा हो सकती है कोई? साहिरा? वरना इतने बरसों तक क्या वो सलामत रह सकती थी? अपने सहर ही की बदौलत तो हुरम बन पाई है वो। घबराओ नहीं खातून। हुरम भी क्या चीज है, नाम सुनते ही लोगों की रूह तक कांप उठती है। तबीबा के पास जाओ, जचकी में कितना वक्त रह गया है इसकी मालूमात लो। मलिका, आका ने शहजादे मुस्तफा को अपने हुजूर तलब किया है। उस फाल वाली की बातों पर एतमाद नहीं कीजिएगा मलिका। मुस्तकबिल में क्या होने वाला है ये अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं जान सकता, कोई नहीं देख सकता। कोई भी चीज हद में नहीं होती। या तो हमें सब कुछ कबूल करना होगा या फिर इस शक को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। उसकी रवानगी की तैयारियां मुकम्मल है ना? जी मुकम्मल है। खातून की मां बनने में कितना वक्त रह गया है? तबीबा ने 2 महीने का बताया है। मलिका, अगर शहजादा पैदा हुआ तो हम क्या करेंगे? मलिका, मलिका, क्या है? नाज़नीन खातून मां बनने वाली हैं। फारिया, मेरी पोशाक लेकर आओ।
जिस तिफल को मैंने छुपा कर रखा था उसे ले आई महल में। सुंबुल आगा उसे लेने के लिए मरमर महल गए हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा। और फातिमा सुल्तान का? फातिमा सुल्तान ने खातून को अपने कमरे में बंद कर लिया है। मालूम था मुझे, इस मसले में दखल देगी, मैं जानती थी इस बात को। आओ। आका, कहिए। नाज़नीन खातून का वक्त शुरू हो गया है। फातिमा सुल्तान ने आपको मालूमात देने के लिए भेजा है। मलिका पुरसुकून रहिए, खुद पे काबू रखिए खुदारा। क्या करूं बताओ मुझे? अगर शहजादा हो गया तो क्या होगा? मुस्तफा के साए से भी खौफजदा रहती हूं मैं, और अगर अब दूसरा शहजादा हो गया तो क्या करूंगी मैं? ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। जरूरत पड़ी तो उसे फातिमा सुल्तान के कमरे से निकाल लाऊंगी मैं। अदब, मलिका हुरम सुल्तान तशरीफ ला रही हैं। मलिका, अल्लाह तुम्हें खुश रखे खातून। शहजादे की माँ तो ना बन सकी तुम, लेकिन चांद से चेहरे वाली शहजादी की माँ बन गई। माशाल्लाह। नाम क्या रखा है अफीफा खातून? रजिया है मलिका। रजिया? अल्लाह नजर बद से बचाए रखे। आशा के कितने चाहने वाले हैं। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। आमीन आमीन। क्या हुआ वालिदा? दूसरों के लिए कुआं खोदने वाली इतनी खवातीन यहाँ जमा हो गई हैं कि मुझे लगता है कि अब कोई ना कोई गिरेगा जरूर इस कुएं में। أعوذ بالله من الشيطان